Well, for the last couple of weeks, India has been in the midst of what we've been calling a hate wave, where religious processions such as the one in Jahangir Puri in Delhi have turned into communal clashes, where hate speeches have been made with impunity by those who are out on bail for the same offence, but who have clearly no fear of the law, where bulldozers are being used to raze the homes of those alleged to have thrown stones at Ram Navami processions, all in violation of any due process. What is going on, and do we need special laws to deal with the problems of hate speech and everything that we're seeing around us? Justice Madan Lokur was on India's Supreme Court. He's retired now. He joins us on NDTV today. Justice Lokur, if I could just ask you firstly your thoughts on what we're talking about and the state of the country today. It seems that almost every day now there is some communal tension or the other that is making front page news. Yes, it is very alarming. There's no doubt about it. We can't have, communal violence or, hate speech going on a daily basis. This has to stop, and there's no doubt about it. How would you say that the courts have then held up, as a sort of as one of the pillars of our democracy? Have the courts also failed to do their duty? I think so, in the sense that, many of these issues need to be resolved quickly. You can't wait for a couple of months to take a decision on this. It has to be done quickly. And the more you delay judgment, during the period that the case is pending, people will indulge in hate speech, they will indulge in violence and so on. And if somebody wants to stop them, they will say, the matter is sub judice. So the decision has to be taken by the courts quickly and, finally, in the sense that, not that adjourn it, and have it again after about a week or 10 days and so on. It can't go on like this. I just wanted to break up, the various issues that we're dealing with at the moment, sir. And one of them is the issue of hate speech. Now, you have Yati Narsinghanand, who was arrested, in Uttarakhand for a hate speech that was, made, and then he subsequently got bail with the condition that he would not do it again. He did it again in Delhi, and he's not been arrested again. There is clearly no fear of the law. There is clearly a mockery that he's making of our courts as well, of our judiciary. Yes, certainly. And somebody has to be held accountable for this. And in a case like this, I think the police or the prosecution will have to be held accountable. You can't violate orders of the court and get away with it, right? Somebody has to be held accountable. I have no doubt about that. And there's no provision here for the court itself to step in and say, hello, we gave you bail, there were certain conditions, you're violating them. If the police aren't acting, can't the courts do it? The courts should be able to do it, but for some reason they're not doing it. There's so many things which are happening. Instances are brought to the court, and the court just adjourns it and says, all right, we'll take it up after some time, right? There's no finality to the decision. So when that happens in a case that is brought before the court by somebody, by the prosecution or by an individual or a group, and a decision is not taken, it's very unlikely that the court will act on its own and say, all right, we are going to go ahead and look into this case. But, I have seen that in the past you've batted very strongly for having separate laws to deal with hate speech. Now, technically, it's kind of covered in the law, isn't it? I mean, if the prosecution wants, if the police wants, they can go after people for hate speech. They just perhaps don't do it as much as they should. So what kind of laws would you actually like to see? And do you think it would actually help? The Supreme Court has taken a decision in 2014 in Pravasi Bhalai Sangathan. And in that decision, they have said that the law as it exists is sufficient to deal with hate speech, right? The Karnataka High Court has subsequently taken a view that since hate speech has not been defined, we can't prosecute a person for hate speech. That is contrary to the decision of the Supreme Court. Now, if you look at the various provisions under the Indian Penal Code, I think there are enough provisions to deal with hate speech. One has to keep an open mind and see that, the law is interpreted correctly. And if the Supreme Court says that the law is sufficient,
I don't see why prosecutions cannot take place. So why do you think they're not taking place then? Is it clearly a lack of political will to do it? Yeah, well, I suppose that's $1 million question, why they're not taking place. Yeah, I suppose so, yes. Can I ask you then about the other aspect, which is, the bulldozers that are now sort of under full swing in Madhya Pradesh, in Khargaon, after the Ram Navami violence that we saw that day, the government there going full steam ahead and saying, look, we're acting against those who allegedly, they're not even saying allegedly, well, they're saying these are the people who pelted stones of this procession, so we're tearing their houses down. Isn't this a complete violation of any due process, sir? Absolutely, absolutely. There is no doubt about it. I mean, you can't go to somebody's house, and demolish it. It's just completely out of the question. Take something, like a civil offense. All right, if somebody owes money to somebody else and does not pay the amount, even then, residential premises cannot be taken away. So I don't see how, under what provision of law can they demolish somebody's house for an offense that has not even been proved. It's just an accusation. And if the authorities get away with it, we're headed for deep trouble. But then I ask you again, why aren't the courts speaking up? I mean, courts take, I don't like this word suo motu, but that's what it's called, right? They take up issues on their own. They issue notices when they want to. What is preventing India's Supreme Court that everyone else looks up to, sir, from taking cognizance of this and saying this is a blatant violation of the law, stopping it? Yeah, I think they should. I mean, the courts have to be proactive. That's one thing. Okay. And I think in the recent past, the courts have not been proactive. They've not even been reactive in the sense that people have come to the courts, habeas corpus petitions, for example, electoral bonds and so on, and the courts have not taken any action. So if the courts are not reactive, there's no chance of the courts being proactive. And if the courts are not proactive, the executive will get away with things like, bulldozing houses and so on. But the courts have also said that if you say it with a smile, it's not hate speech. Where does that come from? Yeah, well, I don't know. It's very strange. It's very, very strange. Yeah. Well, Justice Lokur, just last thoughts from you then. I mean, you're saying that you're worried about, what the country is going through at the moment. As a citizen, as someone who served the highest court, what would you like to see urgently, especially from the government? Would you like to hear the Prime Minister break his silence on this? What would you like to hear and see? Well, I would like the government to say that, whatever is happening, right, has to be investigated and investigated very quickly, number one. Number two, it has to stop, right? The feeling is that these people who are doing these kind of things, the government is in a sense complicit. The demolition of houses in Madhya Pradesh has been done by the government, right? So obviously the government is somehow or the other involved, whether it's a state government or whether it's a central government, that's besides the point. I think the government has to say that, listen, stop it. Enough is enough. And if the government doesn't do it, I think the courts should step in, be proactive and say, tell us what's going on. You can't violate the rule of law with impunity and get away with it. This is just not acceptable at all. I hope somewhere, someone in the hallowed halls of the judiciary is listening to you, Justice Lokur. Thank you very much, sir, for joining us. Thank you. Thank you. So 3 days after that violence in Jahangirpuri in northwest Delhi, we're seeing an ugly war of words between the BJP and the Aam Aadmi Party about those who've been arrested and which party they apparently allegedly belong to. Joining us on NDTV this evening first is the Aam Aadmi Party's Sanjay Singh, who's a member of parliament from the Rajya Sabha. Sanjay Singh, thank you very much for joining us. Sanjay ji, सबसे पहले ये बताइए कि BJP ने कल कहा कि one of the main accused Ansar, he actually belongs to the Aam Aadmi Party. आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि अंसार belongs to the BJP. तो ये क्या हो रहा है? ये किस पार्टी का आदमी है? देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं निधि जी, इसको आप देख सकती हैं और इसमें साफ तौर पे ये आदमी जो अंसार है, जिसको मुख्य आरोपी बता रही है पुलिस, वो बीजेपी की कैंडिडेट के प्रचार में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के
इलेक्शन में काम कर रहा है ये। तो ये गहरी साजिश का हिस्सा है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि दंगों से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। पूरे देश में 3400 दंगे हुए हैं 4 साल के अंदर, 3400। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार के मंत्री ने बयान दिया है। 4 साल में मोदी जी ने इस देश को 3400 दंगे दिए हैं। ना रोजगार दिया, ना महंगाई से छुटकारा दिया, ना काला धन वापस लेके आए, ना बेरोजगारी दूर की, ना किसानों के फसल का दाम दोगुना किया, ना स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए, सिर्फ और सिर्फ दंगे दिए इस देश को। लेकिन संजय जी तस्वीर तो कोई भी ले सकता है ना। तस्वीर अगर आप अंसार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने उसको आम आदमी पार्टी की टोपी में देखा, हमारे पास वो टाइप की तस्वीर है। आप कह रहे हैं वो बीजेपी वालों के साथ नामजद हुए हैं जिन पे एफआईआर जी, जो बीएचपी और बजरंग दल के लोग नामजद हुए हैं, ये कौन लोग हैं? इनका किससे ताल्लुक है? किस संगठन से इनका रिश्ता है? आप बताइए मुझे। उनका तो और ये नाम ही नहीं है एफआईआर बीजेपी में। के कैंडिडेट का प्रचार कर रहा है, ये कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहा है, बाकायदा इसकी फोटो है, इसको ये मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन संजय जी ये तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते। पिछली बार 2020 के दंगे में आपने देखा था कि कपिल मिश्रा किस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहा था, माना पुलिस ने उसको? कहीं नहीं मानेगा। लेकिन संजय जी एक तो क्रिटिसिज्म इसलिए है, सवाल ये है कि एक आम आदमी पार्टी पे क्रिटिसिज्म आता है, अरविंद केजरीवाल पे आरोप आता है कि आप लोगों ने पहले जब दिल्ली में ऐसे दंगे हुए 2020 में, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। जब सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। शायद आपकी पॉलिटिक्स ऐसी है। इस बार आप थोड़ा बोल रहे हैं, मगर पहले नहीं बोला आपने। कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी की है, और बीजेपी की पॉलिटिक्स है दंगे कराने की। दिल्ली के दंगे बीजेपी ने कराए और इसके 1000 प्रमाण मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, रामनवमी के जुलूस में नाबालिग बच्चों के हाथ में कट्टे, तमंचे, तलवारें, भड़काऊ नारे, ये लोग कौन है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी जुलूस रामनवमी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हनुमान जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हमारे तमाम विधायकों ने हिस्सा लिया, शोभा यात्रा निकाली। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। बिना परमिशन के इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है जिसमें तमंचे, कट्टे, तलवारें लहराई जा रही हैं। ये कौन से लोग हैं? क्या करना चाहते हैं ये? और एक नहीं, पूरे देश का माहौल देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश में दंगा हो रहा है, तो झारखंड में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। एक इंसिडेंट की बात नहीं है। लेकिन संजय जी, मैं आपसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले विपक्ष के कई नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे ऐसे दंगे हो रहे हैं, इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं पिछले 1-2 हफ्ते में, प्रधानमंत्री चुप हैं। उसमें आपकी पार्टी ने साइन क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी नहीं है उसमें? क्या उसमें ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है? जब हमारी पार्टी देश की को जितनी वॉइस है, हम पूरे ताकत से ऐसी राजनीति का विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार बोल रहे हैं, हमारे एक प्रवक्ता, हम सारे लोग बोल रहे हैं। और भाजपा गुंडों और लफंगों की पार्टी है, दंगा कराने वालों की पार्टी है, ये पूरा देश देख रहा है। 3400 दंगे हुए इनके राज में, हर जगह माहौल खराब करने पे लगे हुए हैं लोग। क्या चाहते? क्या देश की राजधानी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जब से अमित शाह जी के हाथ में कानून व्यवस्था है दिल्ली की, आप देख लीजिए, कभी वकील मारे जाते हैं, कभी गैंगवार होता है, कभी कोर्ट में हत्या होती है, कभी छात्रों पे हमला होता है, कभी दंगे होते हैं। तो संजय जी, ये बताइए कि अभी हालात ऑन ग्राउंड हालात कैसे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है टू इंश्योर कि ये जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं और जो हालात ऑन ग्राउंड है वो शांति बनी रहे? ऑन ग्राउंड जो हालात, ऑन ग्राउंड जो पुलिस वाले बता रहे हैं कि वहां की स्थिति नियंत्रण में है अभी, और बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति नहीं है, ये पुलिस का भी बयान है। और वहां लोगों से भी जो स्थितियां पता चल रही हैं कि अभी कोई ऐसी दंगे फसाद की स्थिति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों होती हैं? ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री के घर पे हिंसा करने वाले लोगों को अपने पार्टी दफ्तर में बुला के सम्मानित करते हैं, माला पहनाते हैं। निधि जी, एक बाबा है जो महिलाओं को बलात्कार करने का बयान देता है, उसको राजेश वर्मा बीजेपी का सांसद माला पहना के सम्मानित कर रहा है। हाथरस कांड में गैंगरेप करने वालों के साथ बीजेपी खड़ी होती है,
उन्नाव कांड में रेप करने वाले के साथ बीजेपी खड़ी होती है। तो बीजेपी गुंडों और अपराधियों की पार्टी है। पूरे देश में इन लोगों ने माहौल खराब रखा है, कर रखा है। महंगाई पे बात ना हो, एमसीडी में जो इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है उस पर कोई बात ना हो, जो लिंटल में दलाली खाते हैं, जो तमाम और तरीके का करप्शन करते हैं उस पर कोई चर्चा ना हो। चुनाव इन्होंने टाल दिया जी। तो ये pretty strong words from you, Sanjay Singh. नफरत फैला रहे हैं लोग। Pretty strong words from you today. As a member of Parliament from the Aam Aadmi Party, will be speaking to a BJP MP shortly as well. Thank you for joining us with your perspective on that story, which has become a full-blown political war. Well, quite an ugly war of words has broken out, as you can see, between the AAP and the BJP over that violence in Jahangir Puri. Joining us on NDTV now is Mr. Ramesh Biduri, Lok Sabha MP of the BJP, also from Delhi. Biduri ji, let me first ask you what I asked Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party a little earlier. First on the accusations over one of the main accused, Ansar. AAP says, you say that he's a member of AAP. वो कहते हैं that he's a member of the BJP. तो सच्चाई क्या है? देखो, सच तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सच्चाई आपसे ज़्यादा कौन निकालेगा। आपका चैनल तो विशेष रूप से स्पेसिफिक ध्यान रखता है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, तो सच्चाई तो सबको मालूम है। उसकी क्लिप जारी हो रही हैं, फिल्में जारी हो रही हैं। तुम कहो तो मैं मेरे टेलीफोन पे जो क्लिपें सोशल मीडिया पे चल रही हैं आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जी। तो इसीलिए सच्चाई तो ये कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दो फर्क हैं। जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा, राष्ट्र के सम्मान की बात करेगा, वो भाजपा का कार्यकर्ता बन सकता है। राष्ट्र के अपमान की या राष्ट्र में रहकर राष्ट्रद्रोह जैसी हरकतें करने का काम करेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल ही नहीं खाता। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का समर्थन कौन करने वाला होगा? अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती है जी। तो इसीलिए हमारी पार्टी से, हमारे दल से ऐसे लोगों का दूर तक कोसों तक कोई मतलब नहीं हो सकता। लेकिन बिदुरी जी, सबसे पहले पॉलिटिकल बातचीत तो चलेगी, लेकिन जहांगीर पुरी में अभी स्थिति कैसी है ऑन द ग्राउंड? अभी मुझे जैसे जानकारी मिली है टीवी चैनलों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, हालात वहां पर जो सोशल मीडिया में बताए जा रहे हैं वो नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार की भ्रामक बातें फैला रहे हैं। वहां बिल्कुल शांति है। कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या कुछ अपने आकाओं के इशारे पर इस प्रकार की हरकतें करवाते हैं। अगर वहां शोभा यात्रा निकली तो वो बिल्कुल प्रायोजित, बिल्कुल पहले से ही प्री प्लान थी वहां पर दंगा करवाने के लिए। लोगों की छतों पर पत्थर रखने का मतलब क्या होता है? 3 लोग जो 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, उनके कुछ लोगों से बात होती है, वो मौके पे पहुंचते हैं। मेरे पास, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर सकता हूं, भेज सकता हूं। अभी किसी ने अपनी छत से वीडियो बनाई है, शोभा यात्रा आगे निकल गई थी, पीछे से कुछ ग्रुप आते हैं और उनके ऊपर पथराव करते हैं और पुलिस बीच में मूक दर्शक बनी खड़ी देखती है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की इमेज डेंट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड वापसी गैंग, कुछ इस प्रकार के मोमबत्ती गैंग, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। वो इस प्रकार की हथरत कुछ विदेशी फंडिंग की सपोर्ट से, जिसमें पीएफआई मुख्य रूप से है, उसकी फंडिंग के आधार पर ये काम होते हैं। लेकिन बिदुरी जी, ये मोमबत्ती गैंग कौन है? मोमबत्ती गैंग वही होता है कि जब जब इस प्रकार की तुष्टीकरण की हरकतें होती हैं तो वो मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाते हैं भारत की इमेज खराब करने के लिए। जब उस प्रकार की माइनॉरिटी में रहने वाले लोग कोई हरकत करते हैं, उसके बारे में उनको वो चुप्पी साध जाते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। ये निश्चित रूप से सीए के विरोध में जो ये खड़े हुए थे लोग, क्या उन्होंने भ्रम नहीं फैलाया था लोगों के बारे में कि सीए क्या है, उसका अर्थ क्या है, लॉजिक क्या है? अब कैसे शांत हो गए हो? तो अनपढ़ लोगों को या बाहर के जो रोहिंग्या, बांग्लादेश से घुसपैठी हैं, उनको शरण देने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी उनको मदद देती है इस देश के अंदर, वो है मोमबत्ती गैंग। कि जब कहीं कोई आम नागरिक के साथ भी झगड़ा हो गया, कोई रोड रेज हो गया, गलती से वो दोनों अलग अलग समुदाय के हो गए, तो उसको रंग देने का काम किया जाता है कि ये माइनॉरिटी में होने के साथ इसके साथ में रोड रेज की घटना हुई है, जबकि देशों में हजारों संख्या इस प्रकार की होती है। वो मोमबत्ती गैंग है कि एक पक्ष को देखता है अपनी रोटी चलाने के लिए और दूसरे पक्ष को नहीं देखता है। लेकिन बिदुरी जी, ये बताइए कि पुलिस भी मानती है कि जब ये शोभा यात्रा निकली है उस दिन, कई लोग उस यात्रा में भी उन्होंने अपने साथ में चाकू, सॉर्ड, कंट्री पिस्टल वगैरह वगैरह वो भी साथ लिए थे। क्या वो ठीक था? क्या वो शोभा देता है शोभा यात्रा में? सब झूठ है, सब झूठ है। यू आर ऑल्सो टेलिंग लाई।
कभी भी शोभा यात्रा में पिस्तौल, बंदूक, उसके लिए पुलिस जांच कर रही है, वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, 150 फुटेज पुलिस के पास है। ऐसे लोग कोई भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, होगी 100%। लेकिन ये भ्रम फैलाकर आपका चैनल, मैं इसके लिए आई एम सॉरी, आपको बुरा लगेगा, वो भी इस काम में आगे बढ़ चढ़कर, आपने भी जो शब्द यूज किया है, विदुरी जी, मैं तो सिर्फ वही कह रही हूं जो पुलिस ने कहा है। मैं तो सिर्फ वही कह रही हूं जो पुलिस ने कहा है। पुलिस ने कहा है, पुलिस ने कहा है, बिल्कुल कहा है, पुलिस ने कहा है, बिल्कुल कहा है। आई एम सॉरी, देयर वर वेपन्स इन द प्रोसेशन एंड आउटसाइडर्स आल्सो। ना कोई चाकू छुरियां लेकर कुछ लोग चलते हैं। जो गदा हनुमान जी की होती है, गदा वो पूजी जाती है, गधे को लेकर लोग साथ चल सकते हैं, और भगवान राम के साथ धनुष बाण लेकर लोग चल सकते हैं। और जब रामायण के अंदर रावण का वध होता है, वहां पर युद्ध दिखाया जाता है, तो वो तलवारें नहीं होती हैं, तलवारों का रूप ही अलग होता है जी। तो इस प्रकार का वो चाकू, छुरी, गोले, बंदूक, ये विदुरी जी ये बताइए, सोनू नाम का जो लड़का पकड़ा गया है, जो गोली चला रहा है, वो पकड़ा है ना पुलिस ने। इस प्रकार की जो लोग हैं, दंगाई जो हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी मजहब के लेकिन हो, किसी धर्म के विदुरी हो, जी, किसी भी जाति के हो। ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि पुलिस की तरफ से भी चूक हुई है? क्योंकि पुलिस ने माना है कि ये जो शोभा यात्रा थी, तीसरी यात्रा, इनको परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो इतना आगे पहुंच गए, तो क्या पुलिस ने गलती करी उस दिन? मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हैं कि इस प्रकार के आयोजनों में जो बिग, अच्छे प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं या संस्थाएं होती हैं, वो परमिशन ले लेती हैं। कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं। ये पूरे देश की प्रैक्टिस है। आज तक जंतर मंतर पर जितने धरने हुए, आज तक रिवॉर्ड वापसी गैंग और मोमबत्ती गैंग जब जाते हैं जंतर मंतर, इंडिया गेट पर, क्या परमिशन लेकर जाते हैं? वो परमिशन होती है उनके ऊपर? कोई भी दिखा दे कि हाँ वो परमिशन लेकर कार्रवाई की है। लोकतंत्र में इंफॉर्मेशन दी जाती है, लोकतंत्र में अपनी बात। जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े गैंग के नारे, क्या परमिशन दी गई थी वहां पर जी? तो ये जो आप इसको पुलिस की चूक बताई जा रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पुलिस साथ थी, पुलिस को इंफॉर्मेशन थी, और पुलिस गली मोहल्ले में जाकर हर व्यक्ति की भावना, अब हर मस्जिद में रोड पे बैठकर रोड पर नमाज पढ़ी जाती है, पार्कों में, क्या वो परमिशन लेकर नमाज पढ़ते हैं क्या? अरे देश में मेरी बात सुनिए आप, देश में आप ये स्टेटमेंट दीजिए कि देश में सड़कों पर बैठकर लोग नमाज पढ़ते हैं, पार्कों में नमाज पढ़ते हैं, क्या वो परमिशन लेकर करते हैं? रोड रोक दिया परमिशन लेकर। लेकिन विदुरी जी, ये तो पुलिस कह रही है कि उनके पास परमिशन नहीं तो थी। इतने बड़े देश के अंदर पुलिस ने तो केस भी किया है परमिशन को लेके। इन्फॉर्म किया जाता है प्रॉपर वे में, जो बड़े और लेकिन विदुरी जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर पुलिस, जैसे मुझे ये तो पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह रही है विदुरी जी, पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनके पास परमिशन नहीं था। अभी दीपेंद्र पाठक हैं स्पेशल कमिश्नर, उन्होंने फिर बोला है, उन्होंने केस भी किया है। तो परमिशन तो होती है ना, जरूरी होती है ना, ऐसे थोड़ी होता है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। केस अगर वो ऐसा बनेगा तो पुलिस में कार्रवाई करेगी। अगर वो ऐसी बात है कि परमिशन ना लेने के बाद, और परमिशन उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, उनको परमिशन नहीं मिली तो वो कानून अपना काम करेगा, उसमें हम और आप क्यों उलझेंगे? ओके रमेश विदुरी ऑफ द बीजेपी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एनडीटीवी।